السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ موسی ریور بیڈ کے تمام خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کیے جائیں، اراضی حصول کے لیے مناسب معاوضہ ادا کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ پر جائزہ اجلاس۔ آر ٹی سی ملازمین سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت پابند عہد، بعض تنظیمی ملازمین اور عوام کو گمراہ کر رہی ہیں۔ 11% اضافی تنخواہ پر 1 جولائی سے عمل ہوگا، وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کی وضاحت۔ ریاست میں ترقی تھم چکی ہے، بد انتظامی اور بدعنوانی میں اضافہ، زرعی شعبے کو یوریا کی فراہمی میں ناکامی، فیوچر سٹی کے نام پر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار، کے ٹی آر کا الزام۔ الوال کے حشمت پیٹ میں محکمہ آثار قدیمہ کی اراضی پر مبینہ قبضے کو کیا گیا برخاست، ہائیڈرا کا بلڈوزر چلا، 10 ایکڑ اراضی بازیاب، کوکٹ پلی میں بھی غیر مجاز ڈھانچے منہدم۔ شہر کے نواحی علاقے کیسرا میں سرقے کی وارداتوں میں اضافہ، خاتون کے گلے سے طلائی چین چھین لی گئی، 2 ٹو ویلرز کا بھی سرقہ۔ اور پوجا کے نام پر دھوکہ دہی، بیرون ملک سے پہنچے پجاری گرفتار، باچوپلی پولیس کے حوالے۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی، 3 اور 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ، کیو میکس RF آرکیٹ، الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 اور 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کریں، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے MCRHRD کے بودھی پویلین میں موسی ریور فرنٹ منصوبے کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں وزیر پونگلٹی سرینواس ریڈی، رکن پارلیمنٹ ویم نریندر ریڈی، خصوصی چیف سیکرٹری جیش رنجن، موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے MD نرسمہا ریڈی، MRDCL کے جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر گوتمی، HMDA کمشنر سرفراز احمد، CMO کے سیکرٹری مانک راج اور محکمہ بلدیات کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں مسندی
फ्रंट मंसूबे के पहले मरहले पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि मूसा नदी के रिवर बेड में रहने वाले तमाम खानदानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएं। उन्होंने कहा कि अराजी के हसूल के लिए रजामंद मालिकान को TDR दिया जाए और मुनासिब मुआवजा अदा किया जाए। गांधी सरोवर मंसूबे के लिए हासिल की जाने वाली दिफाई अराजी पर मौजूद तामीरात को रियासती हुकूमत मुंतकिल करेगी। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि अवामी मालूमात और बेदारी के लिए नेकलेस रोड पर मूसी एक्सपीरियंस सेंटर कायम किया जाए, जहाँ मूसा नदी रिवर फ्रंट मंसूबे के तमाम मुजव्वज़ा तरक्याती कामों की नुमाइश की जाए और अवाम की आरा और तजावीज़ भी हासिल की जाए। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत RTC मुलाजमीन से किए गए हर वादे पर अमल कर रही है और बाज़ यूनियन रहनुमा हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर मुलाजमीन और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि RTC हड़ताल के दौरान नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में वज़रा, आला हुक्काम और मुख्तलिफ मजदूर यूनियनों के नुमाइंदों के साथ तकरीबन 14 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले किए गए थे। 32 मुतालबात में से 29 RTC इंतज़ामी और 3 हुकूमत के दायरे इख्तियार में थे, जिन पर मरहलेवार अमल जारी है। वज़ीर ने कहा कि 2021 PRC के तहत ऐलान करदा 11% तनख्वाह इजाफ़ी जुलाई के तनख्वाह से नाफिज होगी। RTC इंज़माम के लिए तरीक़ेकार तय करने वाली कमेटी में तस्लीम शुदा यूनियन के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। इसीलिए पहले यूनियन के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी तमाम वादे मुकम्मल करने के लिए संजीदा है और मुलाजिमीन से अपील की कि अफवाहों और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। तेलंगाना हुकूमत 28 जून को रियासत भर में पल्स पोलियो मुहिम का इनेकाद करेगी, जिसके तहत पैदाइश से 5 साल की उम्र के तकरीबन 40.97 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमे सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने आला हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और हिदायत दी कि कोई भी बच्चा पोलियो के खतरों से महरूम न रहे। रियासत भर में 22,979 पोलियो बूथ, 903 मोबाइल टीमें और 903 ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए जा रहे हैं। 28 जून को पोलियो बूथ्स पर खतरे पिलाए जाएंगे और जबकि 29 और 30 जून को घर घर जाकर पोलियो खुराक से महरूम रह जाने वाले बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। शहरी इलाकों में ज्यादा आबादी के पेश नज़र हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी अजला में 1 जुलाई को भी खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। वजीर ने हिदायत दी कि महाजिर मजदूरों के बच्चों, ईंट भट्टों, तामीराती मकामात, शहरी बस्तियों, नई कॉलोनियों और कबायली इलाकों में रहने वाले बच्चों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को करीबी पोलियो बूथ ले जाकर लाजमी तौर पर 2 खतरे पिलवाएं, चाहे पहले भी पोलियो वैक्सीन दी जा चुकी हो, ताकि रियासत और मुल्क को पोलियो से पाक रखा जा सके। BRS के वर्किंग सदर KTR ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम में पार्टी के अहम कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम और SIR प्रोग्राम पर कारकुनों की रहनुमाई की। उन्होंने दावा किया कि कारकुनों के जोश जज्बे को देखते हुए आइंदा असम्बली इंतखाबात में BRS की कामयाबी यकीनी है और महेश्वरम से सविता इंदा रेड्डी दोबारा कामयाब होंगी। KTR ने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में तरक्की रुक गई है, जबकि बदइंतजामी और बदउनवानी में इजाफा हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों, ख़वातीन, SC, ST और दीगर तबकात से किए गए इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए गए और हुकूमत ज़रई शोबे, फलाही स्कीमों और यूरिया की फराहमी में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि KCR के दौर में गुरुकुल स्कूल, रैतु बंधु, कर्ज माफ़ी, बिजली, मेडिकल कॉलेज, अजला की तश्कील, आबपाशी मंसूबे और फार्मासिटी जैसे बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने भारी कर्ज लेने के बावजूद कोई बड़ा मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फार्मासिटी मंसूबा मनसूख करके अब इन्हीं ज़मीनों को फ्यूचर सिटी के नाम पर रियल स्टेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। KTR ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाएं, अहल वोटरों के नाम वोटर फहरिस्त हज़फ न होने दें और आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పి గద్దెనెక్కిన రేవంత్ రెడ్డి గారు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పి అద్భుతమైన డైలాగులు కొట్టి యాక్టింగ్ చేసి గద్దెనెక్కిన బట్టి విక్రమార్క గారు ఏం జరిగింది అంటే
సమాధానం చెప్పేటోడు లేడు. మీకు గుర్తుండాల, ఎలక్షన్లకు ముందు రేవంత్ రెడ్డి గారేమో రజనీకాంత్ లాగా డైలాగులు కొట్టిండు. నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా, కేసీఆర్ ₹1,00,000 రుణం మాఫీ చేస్తే 2 లక్షలు చేస్తా అని రేవంత్ రెడ్డి గారి డైలాగులు. ఇక బట్టి గారైతే కమల్ హసన్ను మించిన యాక్టింగ్ చేసిండు. మీకు యాదికుండాలి, ఆ కార్డులు ఇచ్చారు, కార్డులు గ్యారంటీ కార్డులను ఇంటింటికి మంచిరు. యాదికుందా మర్చిపోయారా మీరు కూడా? గ్యారంటీ కార్డులను మంచిండు. బట్టి గారు ఎంత అందంగా చెప్పిండు. ఏమన్నాడు? ఈ కార్డులు భద్రంగా పెట్టుకోండి, జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి, 100 రోజులు పైలంగా ఉంచుకుంటే 101వ రోజు మా వాళ్ళు వస్తారు, ఇంటింటికి వస్తారు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు వచ్చి మీకు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ₹2,50,000 సంవత్సరానికి లాభం చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తాం, ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 2.5 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పి కమల్ హసన్ను మించిన యాక్టింగ్ చేసిండు. ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా బట్టి విక్రమార్క గారిని, ఏం చేయాలి ఆ కార్డుల్ని? గ్యారంటీ అంటివి, పైలంగా పెట్టుకోమంటివి, 100 రోజులు అంటివి, ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి కార్డులు? మరి ఏం చేసుకోవాలి నీ కార్డులు? నాలుగే గీకేసి పాడైనా కూడా వనికిరావు ఆ కార్డులు. बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के 3 रोज़ा दौरे तेलंगाना के पेश नज़र रियासती बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में जलसेगाह के इंतजामात का जायजा लिया। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि नितिन नबीन अपने खिताब में तेलंगाना के अवाम से अहम उमूर पर बात करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद से ही तेलंगाना में बीजेपी की कामयाबी की बुनियाद रखी जाएगी और आइंदा बलदियाती इंतखाबात में पार्टी 4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि MIM, कांग्रेस और BRS मुत्तहिद हो जाएं तब भी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकते। रामचंद्र राव ने कहा कि वो चाहते हैं कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तवील अरसे तक सेहतमंद रहें। ताहम उनका कहना था कि मौजूदा 5 साल दौरे हुकूमत में भी रेवंत रेड्डी मौसर हुक्मरानी फराहम करने में नाकाम रहे हैं। साबिक वजीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर रियासत के आबी हुकूक से समझौता करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुजवज़ा आबी मंसूबों से तेलंगाना के मफादात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है, मगर रियासती हुकूमत मौसर अंदाज में मुखालफत नहीं कर रही। हरीश राव ने दावा किया कि 3 रियासतों के उज़राए आला की हालिया मुलाकात में तेलंगाना के वजीर आबपाशी और हुक्काम को शामिल नहीं किया गया और एक खुफिया मुआहदा किया गया जिसकी तफसीलात अवाम के सामने लाई जानी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के मफादात को तरजीह देते हुए तेलंगाना के मंसूबों और आबी हुकूक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने अपने दौर में गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी से मुताल्लिक मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी हासिल की, जबकि मौजूदा हुकूमत 2.5 बरस में एक भी नई मंजूरी हासिल नहीं कर सकी। हरीश राव ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे और इस मामले पर असम्बली में तफसीली बहस कराई जाए। तेलंगाना रक्षण सेना की सदर के कविता ने हिमायूनगर में ख़वातीन के लिए कानून साज इदारों में रिजर्वेशन के मौजू पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए 33% रिजर्वेशन का फौरी निफाज ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर अमल दरामद न किया गया तो ख़वातीन को मुत्तहिद होकर इंतखाबी सतह पर अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहिए। उनका कहना था कि बिल के निफाज के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर ख़वातीन का इज्तिमा मुनक्किद किया जाए ताकि मरकज़ पर दबाव बढ़ाया जा सके। कविता ने कहा कि ख़वातीन, OBC और अक़लियती तबक़ात की सियासी नुमाइंदगी में इजाफा नागुज़ीर है। उन्होंने दावा किया कि उनकी जमात ख़वातीन को कम अज़ कम 33% टिकट देगी और अहल ख़वातीन उम्मीदवार दस्तियाब होने पर 50% टिकट देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन के हुकूक़ और सियासी बाइख्तियारी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगी। साबिक़ नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस हुकूमत को नाकाम करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि माइनॉरिटी वेलफेयर के वजीर और माइनॉरिटी गुरुकुल इदारों के जिम्मेदार ओहदेदार होने के बावजूद माइनॉरिटी गुरुकुल इदारों की हालत ख़राब हो चुकी है, जबकि साबिक़ वज़ीर आला KCR के दौर में ये इदारे नुमाया मुकाम पर थे। उन्होंने गोलकुंडा माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज में पेश आए मुबैना वाक़े का हवाला देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने इसे छुपाने की कोशिश की। उनके मुताबिक एक तालिबा मुबैना तौर पर हामिला हुई, उसकी डिलीवरी हुई और नौज़ायदा बच्चे की मौत वाक़ हुई, जबकि कॉलेज इंतज़ामिया ने बर वक्त तवज्जो नहीं दी। मोहम्मद महमूद अली ने मुतालबा किया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला, वज़ीर तालीम और DGP वाक़े पर जवाब दें, मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए।
परगी के कांग्रेस एमएलए टी राम मोहन रेड्डी ने सीएलपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि परगी में केटीआर का जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और कारकुन भी उनकी तकरीर सुने बगैर वापस चले गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने परगी हल्के के लिए कोई काबिल जिक्र तरक्याती काम नहीं किया और इंतखाबी वादे पूरे करने में नाकाम रही। उनका कहना था कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पालमरू रंगारेड्डी समेत आबपाशी मंसूबों का जायजा लिया है और लक्ष्मी देवी पल्ली रिजर्वायर के लिए जमीन के हसूल का अमल तेज करने की हिदायत दी है ताकि लाखों एकड़ आराजी को आबपाशी की सहूलत फराहम की जा सके। टी राम मोहन रेड्डी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों की कर्ज माफी, इंटीग्रेटेड स्कूलों, सरकारी स्कूलों, 100 बिस्तरों वाले अस्पताल, इंद्रमा मकानात, खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों और सड़कों समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर अमल कर रही है, जबकि बीआरएस हुकूमत ने अवाम, खवातीन और अक़लियतों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि अवाम केटीआर के इल्जामात पर यकीन नहीं करेंगे। महकमे लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग व फैक्ट्रीज हुकूमत तेलंगाना के इदारे तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी टॉमकॉम की जानिब से जर्मनी में क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट की जायदादों का ऐलान किया गया। इब्तिदाई माहाना तनख्वाह 2,74,000 रुपये से 3,17,000 रुपये और जर्मन लाइसेंस के बाद ये तनख्वाह 3,35,000 से 3,80,000 रुपये के दरमियान करार पाएगी। उम्मीदवारों की उम्र 43 साल से कम होनी चाहिए। काबिलियत डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी डीपीटी या बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी बीपीटी या मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी एमपीटी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को जर्मन जबान की B1 या B2 सर्टिफिकेट की टॉमकॉम की जानिब से तरबियत दी जाएगी। सालाना तातीलात, मुस्तकिल क़याम की सहूलत, वीज़ा और दीगर उमूर की टॉमकॉम की जानिब से तकमील की जाएगी। ख्वाहिशमंद टॉमकॉम के दफ्तर ITI मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, फूड स्ट्रीट से रुजू हो सकते हैं। मज़ीद मालूमात फ़ोन नंबरात 94404965 या 9440525592 से हासिल की जा सकती हैं। दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर की गई है। रियासती हुकूमत की कायम करदा एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर ATC उटनूर ने नुमायां कामयाबी हासिल की है। मरकज़ में तरबियत हासिल करने वाले 99 नौजवानों को मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में मुलाजमतें मिली हैं। हुकाम के मुताबिक श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने 47, टाटा मोटर्स पुणे ने 36 और फॉक्सॉन एप्पल आईफोन डिवीजन बेंगलुरु ने 14 उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। हुकूमत का कहना है कि जल्द ही वरंगल और करीमनगर में भी बड़े जॉब प्लेसमेंट ड्राइव्स मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि बादशाह रियासत भर में ऐसे रोजगार मेलों का इनेकाद किया जाएगा। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हफ्ते को SIR का फॉर्म पुर करते हुए इसे BLO के हवाले किया। इस मौके पर GHMC डिप्टी कमिश्नर और ARO अनुराधा, बहादुरपुरा MRO बालकृष्णा भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने इस मौके पर आवाम से SIR के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। दूसरी तरफ जहानुमा डिवीजन में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में SIR के काम जारी हैं। रुकन असम्बली ने BLOs को फॉर्म्स हवाले किए। हल्के बहादुरपुरा भी मजलिस के सदूर और मोतमदीन और कारकुन SIR के लिए मुतहरिक हैं। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए SIR के अमल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि मुगलपुरा, मीर चौक और दूसरे इलाकों में SIR का काम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में पार्टी के सदूर और मोतमदीन और कारकुन मुतहरिक हैं। अवाम में फॉर्म्स की तकसीम जारी है। उन्होंने बताया कि SIR से मुतालिक मजलिस के मुतहरिक होने से अवाम में इत्मीनान पाया जाता है। राजेंद्र नगर जोन बनलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में ACP सुधाकर ने अक़लियती इक़ामती स्कूल में साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया। ACP सुधाकर ने बताया कि बढ़ते साइबर क्राइम और ड्रग्स के खिलाफ किस तरह से एहतियात बरती जाए, इससे वाकिफ़ करवाया गया है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने भी हिदायत दी है कि स्कूल्स और तालीमी इदारों में इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएं ताकि तलबा अपने घर वालों और पड़ोसियों को भी इससे वाकिफ करवाएं। इस मौके पर SHO देवेंद्र भी मौजूद थे। आज बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन एरिया में तेलंगाना सोशल वेलफेयर माइनॉरिटी स्कूल में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए। ये प्रोग्राम में बच्चों को आजकल साइबर क्राइम कैसा बढ़ के हो जा रहा और ड्रग्स का इन्फ्लुएंस कैसा हो जा रहा,
वो रोकने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए इधर आए। ये बच्चों को हम पूरा डिटेल्स बताए, साइबर क्राइम कैसा हो जा रहा, इसको रोकने के लिए आप कौन सा प्रिकॉशंस लेना है। ये अवेयरनेस देने के बाद बच्चों जाके उनका घर में और आजू बाजू वाला के उसका पेरेंट्स सबको इसको बोलना है बोल के ये अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम लगाने के लिए हमारा सीपी साहब हर पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दे दिए। एक हफ्ता में 2 दिन हर एरिया को स्कूल्स को जाके ये साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। हाइड्रा की जानिब से आज फिर गैरमजाज तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। बताया जा रहा है कि अलवाल के हुदूद हशमत पेट में महकमे आसार क़दीमा की आराजी पर कायम गैरमजाज ढांचों को मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा के मुताबिक हशमत पेट में सर्वे नंबर 1 की आराजी पर गैरमजाज तामीरात हुई थी। हाइड्रा ने कार्रवाई करते हुए इसे मुनहदिम किया है। 10 एकड़ आराजी को बाजियाब करने का दावा किया गया है और इस आराजी की मालियत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई जाती है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के अमले ने कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एमआरओ ऑफिस रोड पर सड़कों पर कायम गैरमजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की है। जीएचएमसी के हुकाम ने बताया कि मकामी अवाम की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी कि सड़क के किनारे तामीरात की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में कार्रवाई की गई है। इस मौके पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। शहर के नवाही इलाके केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में सरखे की वारदातों में इजाफे से अवाम खौफजदा हैं। ताज़ा वाक़े में चेरियाल के इलाके में सारिक खातून के गले से 5 तोले की तलाई चैन छीन कर फरार हो गया। केसरा की ही रामपली सुभाष नगर में 2 टू व्हीलर्स का सरखा कर लिया गया। एक हफ्ते में सरखे की 3 वारदातों से अवाम परेशान और फिक्रमंद हैं। पुलिस से इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया है। बाचोपल्ली पुलिस ने एनआरआई पुजारी को मुबैना धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक चामरती रामलाचारो के खिलाफ एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम की शिकायत पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर इमिग्रेशन हुकाम ने उसे तहवील में लिया और फिर मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मजहबी रसूमात के नाम पर प्रचामर्ती रामलाचा राव ने लाखों रुपए की रकम हड़प ली थी। खुसूसी पूजा के नाम पर उसने धोखा दिया था। हैदराबाद पहुंचते ही उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस को शुबा है कि इस पुजारी ने और भी लोगों को धोखा दिया होगा। आवाम से भी अपील की गई है कि इस तरह के धोखाबाजों से होशियार रहें। अगर कोई भी मुश्तबा सरगर्मियां नजर आती हैं तो इस बारे में फौरी पुलिस को इत्तला करें। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। मूसी रिवर बेड के तमाम खानदानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएं, आराजी हुसूल के लिए मुनासिब मुआवजा अदा किया जाए। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास। आरटीसी मुलाजिमीन से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हुकूमत पाबंद अहद। बास तंजीमें मुलाजिमीन और अवाम को गुमराह कर रही हैं। 11% इजाफी तनख्वाह पर 1 जुलाई से अमल होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की वजाहत। रियासत में तरक्की थम चुकी है, बदइंतजामी और बदउनवानी में इजाफा। ज़रई शोबे को यूरिया की फराहमी में नाकामी। फ्यूचर सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार, केटीआर का इल्जाम। अलवाल के हशमत पेट में महकमे आसार खदीमा की आराजी पर मुबैना कब्जे को किया गया बर्खास्त। हाइड्रा का चला बुलडोजर, 10 एकड़ आराजी बाजियाब। कुकटपल्ली में भी गैर मजाज ढांचे मुनहदिम। शहर के नवाही इलाके केसरा में सरखे की वारदातों में इजाफा। खातून के गले से तलाई चैन छीन ली गई। 2 टू व्हीलर्स का भी सरका। और पूजा के नाम पर धोखाधड़ी, बैरून मुल्क से पहुंचे पुजारी गिरफ्तार। बाचोपल्ली पुलिस के हवाले। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।